Powers such as Britain and France, they were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. Cracks, splits within the alliances were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. तो अभी आप देख रहे हैं कि कोल्ड वार में, आफ्टर कोल्ड वार या ड्यूरिंग कोल्ड वार, जो डिफरेंट अलाइंसेस फॉर्म हुई थी टू एक्सपोल पावर, जो यूएसएसआर या फिर जो यूएसए थी, दोनों जो एग्जिस्ट कर रही थी, तो उनमें जो उनके साथ जो कंट्री अलाइंड थी, तो वो उनमें भी सम डिस्प्यूट में अराइजेस। जैसे यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना जो कि रशिया के साथ है, तो उसकी भी डिस्प्यूट हुई थी इन द लेट 1950s में। और इन 1969 वो एक छोटा सा वार भी हुआ थोड़े टाइम बीइंग के लिए ओवर किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण। तो क्या देखिए, तो उनके बीच में अलाइंसेस के बीच में भी सम प्रॉब्लम अराइजेस। द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम जो मूवमेंट थी, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances। तो नैम मूवमेंट थी नॉन अलाइंड, मतलब दे आर नॉट ऑन वन साइड, किसी किसी की साइड में नहीं है। मतलब दे आर नॉट फॉर नॉट विद यूएसएसआर और यूएसए, they are non-aligned, okay, they are different, and they are not sharing their not sharing their beliefs with them, okay. So these are newly independent countries, and they have their thinking, their way out of the alliances. You may ask why the superpowers needed any allies at all। these are the two superpowers, why they need allies, उनको why they need, उनको मित्रों की क्या आवश्यकता थी। After all, with their nuclear weapon and the regular armies, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आर्मीज थी, they were so powerful that the combined powers of most of the smaller states in Asia and Africa had, and even in the Europe, was no match to that of the superpower। Means they have power, they have this army, they have the weapons, they have nuclear weapons, so why they have to take the help of smaller countries, why they have to be friendly with such countries? So yeah, the smaller states were why they need that, the smaller states, they were helpful for the superpowers in gaining access to। अच्छा देखिए, जो ये जो सुपर पावर्स थी, तो उनके साथ में जो ये कंट्रीज अलाइंड होती थी, स्मॉलर जो स्टेट्स होती थी, ये कैसे हेल्प करते थे इतने बड़े बड़े सुपर पावर्स को। तो हम ये भी पढ़ेंगे कोल्ड वार के, आप मतलब वाई द नीड ऑफ द पावरफुल माइटी, जो ये रूलर्स थे, पावर्स थी, इनको स्मॉलर स्टेट्स की के साथ अलाइंसेस बनाने की जरूरत थी, क्या थी, व्हाट्स द नीड। तो ये हम पढ़ेंगे। This was helpful for the superpowers in gaining access to vital resources such as oils and minerals। अच्छा देखिए, different countries of the world, they have some types of resources, oil resources। अब छोटे छोटे इराक, ईरान, इन कंट्रीज के पास oil resources and mineral resources, they were scattered all over the world। तो these resources can be um, taken from that place, okay। so different जो smaller states हैं, that may help तो these to have resources। अब territories जो थी, helpful for the superpowers in gaining access to vital resources such as oil and mineral territory from where the superpowers could launch their weapons and troops। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये सुपर पावर्स थी, ये अपने अस्त्र शस्त्र जो थे, जैसे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स थी, लॉन्च कर सकते, स्टार्ट कर सकते वहाँ से। वहाँ पर वो मतलब इवन वहाँ पर वो न्यूक्लियर वेपन्स की वो एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। ट्रुप्स, आर्मी ट्रुप्स वहाँ पर सेंड करते थे और उनको अपने कंट्रोल में रखते थे। फिर वो इट शोज़ कि वो सारा एरिया उनके कंट्रोल में है। लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अच्छा देखो, जो उनके एलाइज थे, जो ऐसी कंट्रीज थी, उस जगह वो अपनी फोर्सेस रखते थे, तो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर अपना चेक रख सकते, स्पाइंग कर सकते, जासूसी कर सकते थे। एंड द इकोनॉमिक
support in that many small allies together could pay for their military. अच्छा, जो अपनी आर्मी है उन्होंने अपनी आर्मी तो बहुत सारी रखी है, उस आर्मी को जो मनी प्रोवाइड कौन करेगा, उस उनके एक्सपेंस उनके खर्चे कौन पूरा करेगा, वो आर्मी, वो धीरे धीरे छोटी छोटी आर्मी कहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर स्मॉलर स्टेट्स में स्मॉलर कंट्रीज में प्लेस कर देते थे। फिर वो कंट्रीज वाले सारे इनके मिलिट्री एक्सपेंसेस को उठाते थे, इनके खर्चे को उठाते थे, और उससे वो आर्मी उनकी रहती थी और खर्चा जो था वो स्मॉलर स्टेट्स पूरा करते थे। दे वर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, आइडियाज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे आइडियोलॉजिकल रीजंस। द लॉयल्टी ऑफ द allies suggested that the superpowers were winning the wars of idea as well. देखिए सुपर पावर्स जो थी वो मतलब एक आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म। तो देखिए जो रशियाज में कम्युनलिज्म है, और जो यूएसए है वहाँ कैपिटलिज्म वाज प्रेजेंट प्रेवलेंट। तो कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म के जो आइडियाज थे वो भी स्प्रेड करना डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस countries arena of the cold war. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे how the different crisis occurs, the Cuban missile crisis, that we begin this chapter with this with was only one of the several crises that occurred during the cold war. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज को कौन कौन सी क्राइसिस का फेस करना पड़ा, क्राइसिस फेस करना पड़ा, वो problems face करनी पड़ी during the Cold War. This we will read here. The Cold War also led to several shooting war. बहुत कई wars हुए और कई लड़ाइयाँ लड़ी, and it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. ये बहुत अच्छा भी हुआ in somewhat some respect that another world war, that is third war, could not occur. The two superpowers were poised for direct confrontation in कोरिया। कोरिया में 1950 या 53 के बीच में वो आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। बर्लिन में भी 1958 से 62 में, और कॉन्गो जो जो में अर्ली 1960 में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती थी, मतलब आमने सामने की लड़ाई उनके बीच पॉसिबल हो गई थी। एंड इन सब सेवरल अदर प्लेसेस क्राइसिस डीपन, और ये क्राइसिस जो था, ये जो तनाव था ये बढ़ता गया एज नेदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वाज विलिंग टू बैक डाउन। और इनमें से कोई भी पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो बैक जाए, वापस जाए। और when we talk about arenas of the cold war, we refer, अगर हम जो वर्ड arena यूज कर रहे हैं कोल्ड वॉर के लिए, तो ये हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? टू एरियाज। एरिना मीन्स टू एरियाज, वो क्षेत्र वेयर क्राइसिस एंड वार ऑकर्ड, जहाँ पर ये क्राइसिस, ये तनाव, ये मुश्किलें हालात का सामना करना पड़ा, और वहाँ पर वार हुआ, और एंड थ्रेटन टू ऑकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम्स बट डिडंट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। पर ये इसने इसको खतरा तो पहुंचाया था, एक मतलब डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया था कि उनके बीच में आमने सामने की लड़ाई हो सकती थी, बट ये लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। और इट वाज वेरी गुड फॉर द होल वर्ल्ड। A great many lives were lost in some of these arenas, areas के लिए word use हुआ है, like कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। वियतनाम वार भी बहुत लंबा चला, अफगानिस्तान या कोरिया में भी, बट द वर्ल्ड वाज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वार इन द ग्लोबल हॉस्टिलिटीज। तो क्या हुआ कि जो वर्ल्ड को और एक वार का सामना नहीं करना पड़ा, वो से स्पेयर हो गया, मतलब छूट गया। और साथ में ग्लोबल ग्लोबल वर्ल्ड के लिए यूज़ किया, ग्लोब जो पूरी कंट्रीज हैं ग्लोब में, तो उनमें जो एनिमी की फीलिंग, हॉस्टिलिटी एनिमी की जो फीलिंग थी वो नहीं रही। इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड, बहुत सारी आर्मी एक जगह एक जगह कंसंट्रेट होगी। इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर would not be sustained and contributed to the misunderstanding. अब देखिए यहाँ पर डिप्लोमेटिक होता है, राजनीतिक संबंध होते हैं एक देश और दूसरे देश के बीच में।
तो वो रिलेशंस भी वर्सन भी हुए. समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, ये दो खेमे, दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था पूरा वर्ल्ड. तो तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज जो उनके आउटसाइड थी, बाहर की कंट्री थी, जैसे कि नॉन अलाइंड कंट्री. इंडिया भी नॉन अलाइंड कंट्री है, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को बिलोंग नहीं करती. दे प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट्स एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस. बहुत ज़्यादा जो डेंजर सिचुएशन आ सकती थी उसको उस वहाँ तक पहुँचने से बचाने के लिए, जैसे नॉन अलाइड कंट्रीज थी, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया. यहाँ पर द कोल्ड वार टाइम लाइन ये शो की है कि कौन सी मतलब ईयर में कौन कौन सी कंट्रीज वार में इन्वॉल्व हुई. ये आप अपने आप देखेंगे. ओके, कोल्ड वार टाइमलाइन. और यहाँ पर देखिए लीडर्स ऑफ द नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो लीडर्स थे, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो मतलब बैटल थी, लड़ाई थी, जो कोल्ड वार चली हुई थी, उसके लिए नैम के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया, मीडिएटर की तरह रोल प्ले किया. इन द कॉन्गो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है, ये जो यूनाइटेड नेशन यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेक्रेटरी जनरल ने भी ही प्लेड अ की मीडिएटरी रोल. मीडिएटरी मीन्स जो बीच का जो पर्सन था, उस और उसने दोनों में संधि कराने की कोशिश की. बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट. सुपर पावर को ये समझ हो गया, रियलाइज हो गया तो वार बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड. अगर मतलब वार होगा तो वो उसकी अपना भी तबाही होगी. डिस्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड वाज देयर. तो उनको ये समझाना, रियलाइज कराना कि वार कुड बी अवॉइडेड, वार को मतलब अवॉइड करना चाहिए. और एंड मेड देम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, कि उनको अपने पर चेक लगाना है, रोकना है अपने को. एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन द इंटरनेशनल अफेयर्स. जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है. एज द कोल्ड वार रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू द अदर, एक एरेना से दूसरे एरेना में जब ये रोल हो गया, द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट. ये बाहर सामने से दिख रहा था कि रिस्ट्रेंट चेक होना चाहिए, और इसका जो लॉजिक है ये सामने से दिख रहा था कि इट्स वेरी नेसेसरी टू कीप अ check on these activities. However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, बीच में जो शत्रुता थी दोनों के बीच में, म्यूचुअल सस्पिशन, एक दूसरे के बीच के बारे में संदेह रखते थे हमेशा, वो सस्पिशियस रहते थे उनकी एक्टिविटीज़ के लिए. लेट देम टू आर्म देम सेल्व्स. अब वो एक सस्पेशन रहता है कि संदेह रहता है कि मे भी दूसरी सुपर पावर है, वो ज़्यादा वेपन्स तो नहीं इकट्ठे कर लिए उसने, और तो वो ज़्यादा वेपन्स इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दे वो भी बहुत सारे वेपन्स इकट्ठे करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स और भी मिसाइल्स या और परीक्षण करते रहते हैं. ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वार्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस.